इतना सा फर्क है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानपुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत हैं पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to all the dear friends. We welcome all of you to our Business Opportunity Over Chai webinar series. During this webinar, we'll be covering the entire brand offering as well as a presentation with you so that you interact with the brand, understand the correct and the complete business offer they are offering in market. Then we'll move towards a panel discussion. So we request all of you to share your queries in question and answer box. We welcome management team of Franchise India, Gaurav Sir and Sonia ma'am, both as a team hosting this particular webinar. And the business opportunity which we are bringing and representing today is Dr. Kumar. It's a reputed brand offering comprehensive health and wellness solutions. And today we have invited Dr. Kumar to talk about his offering in the market. Dr. Kumar Lifestyle Center, they are already having their clinic and health shop operating in Faridabad. He enjoys the 18 years of rich experience, and today he'll be talking about 3 model, basic, advanced, and hybrid related to this particular business opportunity. Thank you so much, Dr. Kumar, for joining in today. It is our privilege to talk about your brand, represent to all the investors. So we invite you to start the presentation as well as if you can share how you started this particular journey. So welcome, sir. Thank you, Archana, for giving this opportunity. So we can't hear you. Can you, You have to unmute yourself, sir. can you hear me now? You have to unmute yourself, sir. Yes, I have done it. Am I audible? Now we can hear you, sir. Okay. Thank you, Archana, once again for giving me this opportunity and the prestigious platform, Franchise India. And I welcome each and everyone who is attending this webinar as an investor or as a participant or as a team member from Franchise India and Dr. Kumar's Lifestyle Center as well. See, I'm Dr. Kumar. I'm a Ayurveda and naturopathy practitioner, and I'm in practice since last 18 years. And in this journey of 18 years, I have gone through the various phases of health scenario of India and as well as of the globe. And you also, everyone is witnessing the conditions of health, the ups and downs of health, and the awareness which is coming up for the health, specifically for the preventive health.
in this these last 18 years since I have started practice, and I'll say since last 30 years, my memories as an the health practitioner, I have seen a lot of progresses in health field, right from scientific field to the awareness towards the yoga, the Ayurveda, and the diet and nutrition. But what I can see and what I can feel, and you also will support me on this, the health condition is continuously deteriorating. The way the things are progressing, whose proportion may the health is not progressing. What is the reason behind that? So as a health practitioner, I also know an my patients and the people who visit to me. What I saw is whatever we suggest them nowadays, specifically this internet is most of the things everybody knows, specifically about diet, specifically about nutrition. Everybody knows almost everything: what to eat, what not to eat, what combination should we eat, what combination should we not eat, and what food stuff is good for the X season and what food stuff is good for the Y season, and what nutrition we take in particularly in a certain age, because age is a big parameter when we talk about the nutrition. बच्चों को अलग जरूरत है, then young age में then we have different needs. Women's की there is a different needs, and and then after a certain age there is a different need. So after understanding everything, but still people are not able to follow all those things. Then as a curious practitioner, I try to know about that. What is the fact behind it? The fact is the availability. See, today, whatever awareness we all got, but the availability of certain, the health items, including the food, nutrition, and other sportive goods, is not there in the market. So if we have to find something, then definitely we have to search a lot here and there. And then second challenge will come up, the assurity. Then whether this thing is good or not good, whether this is because now, again, one message is rolling up because the chemical use, the pesticide use has been increased a lot in its last 1 decade specifically. So whether it is chemical free or not chemical free, we see the lot of posts on social media. So chemical free things are, creating a lot of serious health illness, including cancer and the other, lifestyle disorders. But then who will make sure, because we as a country, we don't have that kind of infrastructure where every food stuff is get checked, and then after checking up, then it is coming on the shelf to sell. There's no such infrastructure because everything is coming from the all, unauthorized, maybe not unauthorized, I'll say the non-verified sources. Today, for example, in the morning, you go to the market, you buy some vegetables or grocery, you don't know the source from where it is coming up. You just label is there, the next XYZ person is selling it, that's it. There's no other information. Fine. So just to address the challenge, we came up with an idea, why not to make a health shop where all kind of health products, right from the dietary products, the nutritional products, so the Ayurveda products, the herbs, and the cosmetics, or maybe the self-care products, or maybe some yoga-related products, the naturopathy-related products, should be under one roof. So if anybody wants to go to the market for a shopping, and specifically for the health shopping, then he or she should opt for the health shop. So if you want to buy something for health, just go to the health shop. And then we got a tremendous results, because before that, whatever we were prescribing to our patients as in dietary options, or as in maybe some herbal options. So we used to face these questions from where we'll get it. So now we have the clear answer, because we opened our first shop within the parameters or maybe the reachable limits to our clinic. So we tell them you go to the health shop and then buy it. So you will get everything there, including superfoods, all kind of millets, all kind of seeds, and everything will be tested. It is the one more things. And second challenge, which I shared with you, the surety, the quality assurance is not there. The product, to kahin na kahin se, then we can get it online, offline, idhar udhar agar haath pair marenge, so we'll get every product. It is not like that the products nahi hai, but ek jagah pe nahi hai, that is there. But second thing is this, the quality assurance nahi hai. Then we bring in that also. Ki every product we checked first. We check it from the various parameters, from the nutritional parameters,
From the demographic parameters, demography means, for example, कोई एक seed है, वो एक seed different states में उगाया जाता है. For example, let's talk about one millet, ragi, because ragi is a very common millet, so everybody know about it. So let's take a common, very common example. So ragi used to cultivate in Uttarakhand also, in Karnataka also, and in some other southern state also, and now it is in some part of the Haryana and the Rajasthan also. But every soil is not suitable for every crop, we all know. So that soil creates a big change in nutritional value of that particular crop. So then we find out, and then the government is also doing a good job in this direction, because as you have heard about the GI tagging. So government is giving the GI tagging of the regional crops. So जहाँ का जो environment है, soil है, वो उस particular crop के लिए अच्छा है, तो वहाँ उसको GI tag दिया जाता है. For example, मणिपुर का black rice को GI tag मिला, बिहार के मखाना को GI tag मिला. मखाना तो उसके अलावा भी होता है कई स्टेट्स में जहां थोड़ा वेट एरियाज है, वेटलैंड्स है, बट बिहार में पर्टिकुलरली एक एरिया है जो जिसको मखाना बेल्ट कहते हैं. वहां का जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो रेस्ट ऑफ द मखाना बेल्ट से काफी ऊपर है. सेम रागी कर्नाटका एंड का रागी का न्यूट्रिशनल वैल्यूज बेटर है, एंड अगर हम ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ से देखें तो उत्तराखंड का रागी इज मच बेटर. सो सेम अदर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर. So we studied all these things. Then why not to make it available everything under one roof, declaring their origin, declaring their nutrition values, and declaring their test reports. So whether, because one thing is this, if verbally claiming something and then with evidence claiming something is a truth, or other are two things. So to bringing this concept in such a format, in such a way. And then to make it one definition, which we call it health shop. So being a doctor, being a practitioner, so definitely I think and I see everything in a different perspective, technical and the nutritional and the medicinal and the other things as well. So this is what the small story behind this concept. This concept we started because everything starts in mind first. So it started around 3-4 years back in mind, and we started the studied everything. So feasibility, possibilities, probabilities, fine. The way of selling, way of acquiring the things. Then because we can't cultivate everything by ourselves, definitely we have to get it. We have to source it from the market. Then what kind of parameters we can take up? What kind of infrastructure is available? What kind of infrastructure is not available? What kind of infrastructure we have to create, or like all these things. And the second category of the products, we have the composite products. Composite products means where more than one mixture is there, which we call it the nutraceuticals, or we may call it the Ayurveda products. So in nutraceuticals category, then we developed around 6-7 products, especially we studied the health scenario. Nowadays, a lot of problems are there related to joints, bone and joints, because if we say after the age of 30 years, these problems starts, and after the age of 45 years, these problems becomes very common in all age groups, 45, 50, 60, like that. Kamar dard, then the joint pains and knee pains and some other related problems. So for that, we developed and we, composite some 39 nutrients and herbs, because that is the mixture of nutrition and herbs. That is not just a supplement, nutrition supplement. That is a mixture of herbs and, the nutrition. And we made the bone and joint for that. And same, the cholesterol problem is very common, even in very youngest, it is there, because kind of the lifestyle, kind of the eating styles we have. And the globalization of the food is the main culprit behind that. So this heart problems, the cholesterol problem is there. Then for that, we developed a product, Cleanser. Cleanser is a complete natural product. So in this category, we developed around 6-7 products only. There's not a big range is there, but that's a specialized range. This everybody need it. Fine. So then Ayurveda category, then the singular extracts, singular herbs, the raw herbs, the processed herbs.
small things. For example, today somebody wants to have trifla, but in trifla, what would be there? इसमें कुछ लग्जेटिव तो मिक्स नहीं कर रखा होगा, सनाए का पता तो नहीं डाल रखा होगा, because lot of companies पीछे if you have studied the report also कि त्रिफला के नाम से the people are selling a lot of serious laxatives, जिसकी वजह से हमारी जो आते हैं या इंटरनल सिस्टम्स है वो ड्राई अप हो जाता है और फिर जो है कॉन्स्टिपेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स परमानेंट हो जाती हैं, पर उस पर कुछ काम नहीं करती. So just to avoid that adulteration, if somebody wants to make his or her own trifla means it's a powder of 3 fruits. Fine. आंवला, हरड़, बहेड़ा. बट आंवला, हरड़, बहेड़ा कहाँ से मिलेगा? या तो कोई पर्टिकुलरली डेडिकेटेड किसी पंसारी की दुकान पे जाएं, वहां पर भी वो ड्रम में, पीपों में उस तरह से भर के रखते, बोरों में, काइंड ऑफ दैट. वो क्वालिटी क्या चेक करते हैं, डोंट नो. एंड वी ऑल नोज कि कोई भी चीज है अगर वो अपने ओरिजिन से, खासकर जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, चाहे वो हर्ब्स हैं, चाहे वो नॉर्मल स्टेपल फूड हैं, जैसे ही वो पेड़ से या अपने पौधे से अलग होती हैं, ड्राइप होती हैं, और उसको बहुत ज्यादा दिन तक अगर हम रखें तो वो धीरे धीरे उनकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज जो है वो डाउन होती चली जाती है. सो ऐसी चीजें पर्टिकुलर जब हम किसी ओपन सोर्स से खरीद के लाते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो ड्रॉप होती हैं, या उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो ड्रॉप होती हैं. तो उन्हीं चीजों को, चैलेंज को भी स्टडी किया कि अगर हम पर्टिकुलरली जो होल हर्ब्स हैं वो भी अगर अपने स्टोर्स पे, अपनी हेल्थ शॉप पे प्रोवाइड करवाएं in a very tested form, so somebody don't want to get a processed products, so or raw product खरीद के अपने लेवल पे प्रोसेस करना चाहता है, so that we called it's an Ayurveda and the herbal category. And there are some Ayurvedic medicines also. Medicines means it's just a self-care medicines for liver care products, and these products are not ours. We identified the best companies in India who make some good products, because every company is not master in every products. कुछ कंपनीज हैं उनके लीवर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कुछ कंपनीज हैं उनके हार्ट प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कुछ कंपनीज हैं उनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कुछ के स्किन केयर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदा कैटेगरी में टॉकिंग अबाउट. So un particularly companies say we got a tie-up, and then we process because after complete analysis, unka composition analysis, unka processing, because there is some good pharmacies in India, Ayurvedic pharmacies, who really and still followed the old ways of making their Ayurvedic formulations. There is some new age Ayurvedic companies are there who do not follow that as suggested and prescribed in ancient Ayurveda books. And if something is made out of those books, it is not that effective. It cannot be effective. Thank you so much, Dr. Kumar. Okay. I will request, So, agar hum ek yeah. presentation tha, what is that we are offering to our participants? If we can start with that, would be very helpful. Yeah. This is what was a small introduction, and sorry I took a little more time. And that's I'll present the things which we are offering. So please let's start the presentation. So this is our brand, Dr. Kumar's Lifestyle Center. Lifestyle Center means how we work more on lifestyle disorders and the lifestyle preventing measures. This presentation may what I'll present the company overview, the current challenges, health solutions, and why now is the best time, and market potential, business models, and the unit financials, etc. Overview, though I have given the overview, my overview and my intro, so I think let's change the slide. So this is me as I shared. There's two pictures you have seen so far. One on the intro slide, that is my picture of I think 2 years back, and this is now. So Rahul, can we just go for full screen?
So my entire studies, right from bachelor degree to then master's and then PhD, it is into alternative medicines. I studied Ayurveda, studied naturopathy, and I did my PhD taking the subject yoga with the bronchial asthma. What is the effect of bronchial asthma of yogic practices and all. So we have the very strong team. It is Dr. Kumar, it's me, Dr. Sushila Dahiya Sangwan, she's my wife, and she's a PhD scholar from AIIMS. And she's a scientist there, and she has expertise in microbiology and specifically on typhoid fever. Dr. G.K. Sharma is an Ayurvedic expert and having around 17-18 years of experience. His expertise into herbs is unmatchable. Dr. Renu Arora, she's a dietitian by profession, by education. And Rahul is with us, and he is the pillar of this project. Is responsible, we can say, for everything. And Naresh Goyal, definitely, he's with us as a chartered accountant. And the team is big, but though these are the key people here. न्यूट्रिशन एंड वेलनेस डेफिनेटली हम पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन. सो हमारा जो ईटिंग है, जो न्यूट्रिशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हेल्थ का बेस ही वो है. और यहाँ पर डाइट और न्यूट्रिशन में डिस्टिंग्विश करना इसलिए जरूरी है. डाइट वो है जो हम खाते हैं, और न्यूट्रिशन जो है जो उससे हमें मिलता है. कई बार हम टेस्ट के लिए, पेट भरने के लिए खा तो बहुत लेते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हमारा न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी ही हो जाए उससे. सो डाइट एंड न्यूट्रिशन को अलग अलग समझना जरूरी है. हैविंग अ गुड डाइटरी स्टफ, जिससे हमें कोई साइड इफेक्ट ना हो, हमारा लेस फैट हो, लेस मसाले हो, वो डाइटरी प्रिकॉशंस हैं. बट न्यूट्रिशनल प्रिकॉशंस में है कि जो हमें चाहिए. जैसे मैंने बताया कि आपका जेंडर क्या है, आपकी हेल्थ क्या है, आपकी एज क्या है, उसके हिसाब से आपकी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज होती रहती है. एंड इसी चीज पे काम करते हुए हमने अपने प्रोडक्ट मिक्स को बनाया. And our body needs nutrients every day, because though it is a big chapter, but still in one line, हमारे बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, खासकर विटामिन्स हैं. विटामिन्स को बॉडी में स्टोर करने की कोई जगह नहीं होती. सिर्फ विटामिन डी और विटामिन B12 कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है. बाकी सारे विटामिन्स हमें हर रोज चाहिए. अगर हम एक्स्ट्रा खाते हैं तो शरीर जितना चाहिए उतना रख के बाकी को बाहर निकाल देता है, और अगर हम कम खाते हैं तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. सो आवर बॉडी नीड न्यूट्रिएंट्स एवरी डे. That means having a good diet every day is important to stay healthy. It is not like occasionally हमने बहुत अच्छा खा लिया फिर नहीं खाया. It doesn't work. So challenge, जैसे मैंने बताया था कि जो इंडिया में, because being a large population, अभी गवर्नमेंट जो मैकेनिज्म उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, टेस्ट पैरामीटर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्वालिटी एक बहुत बड़ा इशू बन के आ रहा है. और जिस तरह से पेस्टिसाइड्स और केमिकल का इस्तेमाल पिछले एक डिकेड में बढ़ा है, उसकी वजह से ऐसी ऐसी बीमारियां जो बहुत रेयर सुनने में मिलती थी, लाइक कैंसर जो है बहुत रेयर सा एक होता था, कभी किसी को हो गया तो इट वाज अ टैबू. बट नाउअडेज शायद हर किसी के कोई ना कोई नियरेस्ट रिश्तेदारी में, आसपास में कोई ना कोई एक कैंसर का पेशेंट कंपलसरी मिल जाएगा. इट इज बिकम सो कॉमन. एंड अदर ऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. इंडिया, every fourth Indian is diabetic, चाहे वो डायग्नोस्ड है या अनडायग्नोस्ड है. every eighth Indian is this hypertensive, चाहे वो डायग्नोस्ड है या अनडायग्नोस्ड है. डायग्नोस्ड अनडायग्नोस्ड किसी को तो पता है, टेस्ट कर लिया डॉक्टर के पास, किसी को पता ही नहीं है, बट है. Obesity is again becoming the big challenge. Malnutrition का शिकार तो हम बहुत पहले से ही हैं, being a third world country. So ये एक बहुत बड़ा इशू बन के आ रहा है क्वालिटी, और उसको भी हमने अपने इस कॉन्सेप्ट में एड्रेस करने की कोशिश की है. ये जो प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं, इसमें जैसे मैंने कहा था, कुछ हमारे सेल्फ डेवलप्ड प्रोडक्ट्स हैं जो आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, जो करंट हेल्थ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हैं. कुछ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रिशनल आयुर्वेदा में, और कुछ जो टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो हम फार्म से या किसी थर्ड पार्टी से सोर्स करते हैं, बट आफ्टर अ कंप्लीट वेरिफिकेशन, उसका सोर्स, उसका वे ऑफ कल्टीवेशन, एंड देन उसका एज, एंड देन फर्दर जो हमारे यहाँ प्रोसेसिंग होती है, देन उसकी पैकिंग्स एंड अदर्स, वो प्रॉपर एक जो बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस वी फॉलो फॉर दैट. एंड इसमें जो हाँ, नेक्स्ट, अभी हमारा तकरीबन 150-200 के करीब प्रोडक्ट्स हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं.
जो धीरे धीरे हमारी लिस्ट बढ़ रही है, बिकॉज हमारा जो तरीका है प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने का वो ऐसा नहीं है कि जाओ मार्केट में एंड देन बोरा भर के ट्रक भर के ले आओ और फिर उसको बेचना। वी सिलेक्ट द प्रोडक्ट फर्स्ट, फिर उसकी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कि उसको कहाँ पे बेस्ट वो है। तो इस तरह से हमारा जो टारगेट है वो अगले 2 साल में 500 से 600 प्रोडक्ट तक पहुंचने का है। इंडिया मार्केट लैंडस्केप पे जो अगर हम उसको देखें तो इसमें 2 तरह का बिजनेस है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और हेल्थ में 2 तरह की सर्विसेज हैं, एक एडवाइजरी सर्विसेज है और एक प्रोडक्ट्स में है। हम इन चारों ही कैटेगरीज में फिट होते हैं। हम ऑनलाइन भी प्रेजेंट हैं, हम ऑफलाइन जो हमारी हेल्थ शॉप का मॉडल है वो ऑफलाइन है, बट वो हेल्थ शॉप भी ऑनलाइन होगी बिकॉज अगर कोई भी उस एरिया से रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन बिजनेस होगा दैट विल गो टू दैट हेल्थ शॉप। देन एक प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली हम डिस्कस कर ही रहे हैं, उसके साथ एक एडवाइजरी। हमारे जो मॉडल्स हैं तो उसमें एक मॉडल तो सिर्फ प्रोडक्ट मॉडल है और 2 जो मॉडल हैं उसमें एडवाइजरी मॉडल भी है, मींस कंसल्टेशन भी विद इन द शॉप कंसल्टेशन, चाहे वो डाइटरी कंसल्टेशन है चाहे वो आयुर्वेदिक कंसल्टेशन है, दैट आल्सो वुड बी अवेलेबल। ये एक हमारा जो अभी जो करंट हेल्थ शॉप है जो चल रही है, ये उसका एक डिजाइन है। ये डिजाइन तब का है जब उसमें प्रोडक्ट नहीं लगे थे, तो इट इज अ प्लेन डिजाइन जस्ट टू शोकेस, एंड इट इज अ रियल डिजाइन जो अभी प्रेजेंट एग्जिस्ट जो ऑपरेशनल। प्रोडक्ट मिक्स में जैसा मैंने इंट्रोड्यूस किया था इंट्रोडक्शन में ही, इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स हैं, हर्ब्स हैं, हर्बल कॉस्मेटिक है। हर्बल कॉस्मेटिक में जो हर्ब से बने हुई स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं या हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं, दोज आर देयर। योगा नेचुरोपैथी स्पिरिचुअल रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। योगा नेचुरोपैथी में कुछ प्रॉप्स लेवल के हैं जिसमें बैक बेंडिंग बेंच है या कुछ स्पिरिचुअल लैंप्स हैं, या फिर बहुत स्मॉल आइटम्स हैं जो बहुत कॉमन है बट जब ढूंढने जाते हैं तो नहीं मिलते हैं। जलनेती का लोटा है या सूतर नेती है या काइंड ऑफ प्रोडक्ट, स्मॉल प्रोडक्ट्स, बट इनकी कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं है अगर हम मार्केट में अगर आप नजर डालें तो। स्पिरिचुअल रेंज में भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मेडिटेशन के लिए यूज होते हैं या अदर जो कंसंट्रेशन या मेंटल माइंड एक्सरसाइजेस के लिए यूज होते हैं। सुपर फूड कैटेगरी में पर्टिकुलरली मिलेट्स हैं जितने, सीड्स हैं जितने, और जो रूटीन के जो हम खाते हैं, फॉर एग्जांपल हम रोटी खाते हैं, एवरीबॉडी यूज्ड टू हैव इट, वो नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं। देन अगर हम देखें तो रिसर्च भी यही कहती है कि पर्टिकुलरली जो नॉर्मल जो व्हीट है उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं और प्लस उसके अंदर जो ग्लूटेन है उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे सबसे गलत असर। अगर आप मेहनत करते हैं तो इट इज फाइन, बट अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मेहनत का काम आजकल रहा नहीं है, तो मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजों के पीछे एक नॉर्मल व्हीट का बहुत बड़ा रोल है। तो व्हीट को हम एकदम से तो नहीं छोड़ सकते, बट उसका कुछ उसका बेटर रिप्लेसमेंट या उसके न्यूट्रिशनल कुछ एडेड न्यूट्रिशन के साथ अगर कोई चीज आती है तो उसका जवाब फिर है अगर हम ब्लैक राइस की बात करें या पर्पल राइस की बात करें जो जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हैं जो कि नॉर्मल व्हीट में 0 है। सो वो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। उसमें उसका डाइजेशन भी नॉर्मल व्हीट से काफी बेटर है। सेम विद द राइस, नॉर्मल राइस का मैक्सिमम जो जवाब ब्राउन राइस में से ही लोग समझ लेते हैं, बट नाउ इट्स अ ब्लैक राइस। ब्लैक राइस में भी अगेन बहुत सारे जो उसके न्यूट्रिशनल क्वालिटीज बहुत ऊपर है नॉर्मल राइस से। सो एंड देन और बहुत सारे मिलेट्स हैं। मिलेट्स की जब हम बात करते हैं तो यूजुअली लोगों को 1-2 मिलेट्स का ही पता होता है, बट देयर इज 7, 8 और 8 काइंड ऑफ मिलेट्स आर देयर जो डिफरेंट तरीकों से यूज किए जाते हैं। मिलेट्स का सबसे अच्छा जो प्रॉपर्टी ये होता है उसमें ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं होता। वो फाइबर उसके अंदर बहुत होता है, वो इजी टू डाइजेस्ट हैं, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं। सो मिलेट्स का धीरे धीरे चलन अब बढ़ रहा है, काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी आर हैविंग। सो उसमें फिर देन सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, एंड देन फिर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जैसे हर स्टेट में कोई ना कोई एक ऐसा स्पेशलिटी प्रोडक्ट होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर ग्रेड का हो चाहे वो आयुर्वेदिक ग्रेड का हो, कि आपने सुना होगा कि वहां पर वो चीज बहुत अच्छी मिलती है, या कश्मीर का एक प्रोडक्ट ये अच्छा है, या उत्तराखंड का ये अच्छा है, या केरल का ये अच्छा है।
तो ऐसी रीजनल स्पेशलिटीज को ढूंढ के लाना और अवेलेबल करवाना फॉर एवरीवन, वो भी हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट है, और वो एक बहुत यूजफुल टारगेट रहेगा। बहुत से चीजों को देखा होगा कि कुछ बीमारियों के लिए लोग बहुत एक जगह पे जाते हैं कि उसका वहां पे होता है, वो कुछ देते हैं, वो कुछ नहीं है कि वहां की एक रीजनल स्पेशलिटी हर किसी एरिया की होती है, उस रीजनल स्पेशलिटी को पैन इंडिया अवेलेबल करवाना, दिस इज वन ऑफ आवर टारगेट। एंड देन सेकंड फेज में वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को भी हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा जो आज इश्यूज हैं वो वेजिटेबल्स में हैं, क्योंकि वो रोज खाना है, उसको हम बहुत ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, वो हर रोज खरीद के लाते हैं, वो कहाँ उगी हैं, कहाँ वो केमिकल के साथ हैं, या वो किसी गंदे पानी के साथ उगाई गई है, नोबडी नोज। तो उन वेजिटेबल, बिकॉज दैट इज अ टीडियस टास्क, तो इसको इसलिए हमने सेकंड फेज में रखा है। लेकिन जो भी फ्रेंचाइजी आज फॉर एग्जांपल ओपन होगी, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, उस फ्रेंचाइजी को वो मिलते चले जाएंगे। एंड घी एंड ऑयल्स, घी सब जो अडल्ट्रेशन जो है मिल्क प्रोडक्ट्स में, मिल्क प्रोडक्ट्स के बाद घी एक सेकंड प्रोडक्ट निकल के आया है जिसमें सबसे ज्यादा अडल्ट्रेशन होती है। और ऑयल्स में भी, ऑयल्स में अब तो कुछ पिछले 2-4 साल से नई गवर्नमेंट ने कुछ बड़े नॉर्म्स बना दिए हैं, उससे पहले तो आपको और हमें पता भी नहीं था, आपको शायद, कि जो हम नॉर्मल तेल भी खाते थे, आजकल जो तेल महंगा हो गया उसका रीजन यही है कि अब नेचुरल तेल में मिक्सिंग जो है वो डिसअलाउ कर दी गई है। पहले सरसों के तेल में कुछ परसेंटेज तक पाम ऑयल की मिक्सिंग अलाउड थी, इसलिए सस्ता हो जाता था, अब वो डिसअलाउ कर दी है। बट इंडिया जैसा वी ऑल नोज कि हमारे देश में बहुत सी चीजें डिसअलाउ होने के बाद भी या अलाउ नहीं होने के बाद भी बहुत ही रहती हैं, तो उन घी और ऑयल्स कैटेगरी को भी एक्सप्लोर करना और उसमें भी बेस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस को लेके आना कि किस तरह से हम अपने कंज्यूमर्स को प्योर चीजें अवेलेबल करवा सकें। सो वैल्यू प्रोपोजिशंस में डेफिनेटली कस्टमर्स के लिए अगर हम बात करें तो अवेलेबिलिटी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो हमने एड्रेस कर किया है यहाँ पे। सो एक्सेसिबिलिटी में क्लोज टू कस्टमर्स एंड मल्टी चैनल्स, जैसा भी हमने बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन एंड ऑल वो मल्टी चैनल हैं। अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा फिर सवाल ये आता है कि ये चीजें इतनी सारी कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं होंगी, उस चीज का हमने बड़ा ध्यान रखा है कि चीजें या तो एट पार मिले, या फिर अगर थोड़ा बहुत चेंज ही मिले जो जस्टिफाई हो सके कंज्यूमर को कि यस मुझे अगर इतना क्वालिटी एश्योरेंस मिल रहा है तो ये थोड़ा सा वेरिएशन तो जस्टिफाइड है। और वो भी वेरिएशंस हमने मार्केट के एट पार ही, कि जो दूसरा प्लेटफॉर्म पे किसी पे इधर उधर मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो जो क्लेम करके बेच रहे हैं उससे एटलीस्ट हम ऊपर ना जाएं। और एक्सेप्टेबिलिटी डेफिनेटली जो हमारा मॉडल है आज, जो मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स हैं, हमने कुछ उस तरह का फॉर्मेट रखा है कि ये एकदम से क्लिनिक भी नजर ना आए, कोई मेडिकल शॉप नजर ना आए, ये एक उसी तरह की एक शॉप नजर आए जिस तरह की शॉप कंज्यूमर्स को देखने की आदत है। बट उसका टैग हेल्थ शॉप इसलिए रखा है कि उसमें सारे प्रोडक्ट वो हेल्थ से रिलेटेड ही हैं, बिना हेल्थ का कोई प्रोडक्ट उसमें नहीं है, चाहे वो हमारी हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हो या इन सम एक्सटेंट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हो। एंड बहुत एवरेज साइज रखा है 300 से 800 स्क्वायर फीट मैक्सिमम, जो इसमें कवर हो जाता है 200 से 800 स्क्वायर फीट तक के बीच में हमारे तीनों मॉडल फिट हो जाते हैं। सो बड़ी स्मार्ट शॉप है एंड इट्स काइंड ऑफ कि अगर आपके एरिया में खुलती है, या इवन आप भी सब जो लोग हैं एज ए कंज्यूमर अगर सोचेंगे कि कोई आपके एरिया में एक हेल्थ शॉप है, चीजें खानी तो रही रोज ही, हमको नई चीज तो बेच नहीं रहे हैं, वो आटा है, बट उस आटे का अगर राइट मिक्स मिल जाए कि अगर मैं डायबिटिक हूँ, आज डायबिटिक आप कहीं टीवी से या फेसबुक पोस्ट से सुनते हैं और कि मिक्स ग्रेन आटा खाना चाहिए, आप मार्केट जाते हैं और एक थैली उठा लाते हैं जिसके ऊपर मिक्स ग्रेन आटा लिखा होता है, लेकिन उसके अंदर मिक्स ग्रेन किस प्रोपोर्शन में है आपने कभी शायद देखा नहीं होगा। ठीक है, सो हर किसी का नीड अलग है, अगर आप डायबिटिक हैं आपका नीड अलग है, आप हाइपरटेंसिव आपका नीड अलग है, आप वेट लॉस करना चाहते हैं आपका नीड अलग है, उस नीड को समझते हुए कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, दिस विल बी द ओनली शॉप जहां पर मिलेंगे। So why now timing is right? Definitely due to this COVID, अगर हम कह सकते हैं तो हेल्थ अवेयरनेस अपने हाई टाइम पे है। लोगों ने शायद एक इतने बड़े लेवल पे प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में इंडिया में पहली बार सोचना शुरू किया है कि हेल्दी रहेंगे तो बचे रहेंगे। पहले हम एक कोविड से पहले थोड़ा सा एक ये फिनोमेना कहीं ना कहीं माइंड में आ गया था
कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया है, कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं हॉस्पिटल में जाकर लेट जाऊंगा, आई बी हेल्दी। लेकिन कोविड ने बता दिया कि हॉस्पिटल्स भी, अगर आप फिट नहीं है तो हॉस्पिटल्स भी आपकी जान नहीं बचा सकते हैं। तो आपको फिट रहना है तो प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, और प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम करना पड़ेगा तो सही खाना सबसे पहला क्राइटेरिया है। Awareness and exposure driving customers to adopt alternate product service that enhance overall health and wellness. डेफिनेटली जैसा मैंने बताया कि जब प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर हमारी ट्रेडिशनल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ही आती हैं। हम आयुर्वेदा की बात करते हैं, हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं, हम योगा की बात करते हैं, ताकि हम हेल्दी रह सकें, बीमार ही ना पड़े। देन डाइट एंड हर्ब्स की बात करते हैं कि हम कौन कौन सी चीजें हम डाइट के साथ रूटीन में लें। लोगों ने पहली बार शायद इतने मास लेवल पे अश्वगंधा लेना शुरू किया, किसी ने गुड़ूचीर की लोई लेना शुरू किया, या और दूसरी जो नॉर्मल जनरल हर्ब्स हैं अब वो रूटीन में लोगों ने लेना शुरू किया। एंड एक्सटर्नल जो एनर्जीज हैं, सो उनको भी लोगों ने काफी जो है वो अडॉप्ट करना शुरू किया है। सो हीलिंग बाय टच एंड द माइंड मेडिटेशन एंड द सेंसेस, ये सारी चीजों को डेफिनेटली धीरे धीरे लोगों ने समझना तो पहले से ही शुरू कर दिया था, लेकिन प्रैक्टिस करना अब शुरू किया। और उसी प्रैक्टिसेस को करने के लिए डेफिनेटली वी नीड द प्रोडक्ट्स एवरी डे। अवेलेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, सो उसी अवेलेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए देन हेल्थ शॉप इज देयर। ये हमने अभी इसको एक तरह से रोल आउट प्लान किया है अक्रॉस इंडिया। उसमें कुछ पर्टिकुलरली शहरों को हमने सिलेक्ट किया है जहां पर अभी जो इनकम लेवल्स हैं और राइट पॉपुलेशन मिक्स है। डेफिनेटली अवेयरनेस जब हम किसी चीज की होती है तो अवेयरनेस के साथ साथ एक अफोर्डेबिलिटी भी एक बड़ा मुद्दा होता है। कई बार हम किसी चीज के प्रति अवेयर तो होते हैं लेकिन हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो भी डेफिनेटली अवेयरनेस जो है बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। लेकिन सिंस ये प्रोडक्ट्स हमारे कोई लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए नहीं है, ये हमारा एक नॉर्मल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स है जो एक लेवल से ऊपर थोड़ा सा, अगर हम मीडियम क्लास या अपर मीडियम क्लास या उससे ऊपर की पॉपुलेशन की बात करें तो एवरीबडी वुड लाइक टू गो एंड बाय फ्रॉम द हेल्थ शॉप। कोई भी आदमी, कोई भी आप लोग, हम सब लोग भी पर्टिकुलरली मीडियम अपर मीडियम क्लास से या थोड़ा सा और ऊपर हायर इनकम ग्रुप से जुड़े हुए हैं या हम किसी को जानते हैं, आज अगर एक प्रोडक्ट्स मुझे 2 रुपए का मिल रहा है नॉर्मली, उसका कोई हेल्थ टैग नहीं है उसके ऊपर, बस वो मैं सालों से खरीद रहा हूँ, खा रहा हूँ, चाहे वाटा ही है फॉर एग्जाम्पल, अगर वो प्रोडक्ट मुझे 2 रुपए का या 2.5 रुपए का कोई अगर हेल्थ टैग के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रॉपर टेस्ट बैच के साथ मिलता है तो आई वुड लाइक टू स्पेंड दैट। क्योंकि हम अगेन कहा कि हमने कॉस्ट को थोड़ा ऑप्टिमाइज रखने की कोशिश की है सो दैट हम हर किसी की रीच और रेंज में आ सकें, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं एंड हेल्थ हर किसी का राइट है, हर किसी को मिलनी चाहिए। सो ये बिजनेस के साथ साथ एक मैं कहूँगा सोशल सर्विस भी है। अगर आप अपने एरिया में कोई एक हेल्थ शॉप खोल के और अगर वहाँ कुछ 100 लोगों को या कुछ 100 फैमिलीज को एक अच्छा ऑप्शन, डाइटरी ऑप्शंस अवेलेबल करवा सके, उनको एक उनकी अवेयरनेस को जो है रियल में उनकी हेल्थ प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट कर सके, तो दैट वुड बी द बेस्ट सर्विस एंड द बेस्ट बिजनेस। ब्रांड स्ट्रेंथ enables to capture an exciting and evolving opportunity to the market। ब्रांड स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ देखिए हमारी ये है कि हम 18 साल से इस प्रैक्टिस में हैं, हम हेल्थ को अच्छी तरह से समझते हैं। बिजनेस भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक बिजनेसमैन होते हैं कोर, जो बिजनेस को बिजनेस की तरह देखते हैं एंड दे डू इट, बट हम इस बिजनेस को बिजनेस की तरह तो देखते हैं लेकिन इसकी जो टेक्निकलिटीज, ये आइडिया बिजनेस के लिए शुरू नहीं हुआ, ये आइडिया जो मार्केट में गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए हुआ, और उसी गैप्स को जब हम फिल करेंगे तो वो एक सस्टेनेबल बिजनेस बनता है। सो हमारी जो टीम है वो बड़ी पुरानी टीम है हमारे साथ, इट इज नॉट अ न्यू टीम, जो हमारे क्लिनिक में प्रैक्टिसेस में साथ थे। हमने मिलके ये सारी चीजें इन पे R&D किया, प्रोडक्ट डेवलप किया, राइट प्रोडक्ट मिक्स कैसे किए जाए, वो ये कैटेगरीज जो है सब बनाना,
एंड मार्केट्स में कौन कौन से एज ए कंज्यूमर मार्केट स्टडी किया कि आज मुझे कोई ये चीज चाहिए तो मुझे कितना टाइम लगेगा इस चीज को फाइंड आउट करने में। अगर वो चीज फाइंड आउट हो भी गई तो क्या कोई क्वालिटी एश्योरेंस है, चलो क्वालिटी एश्योरेंस मिल भी गई तो क्या कोई फर्दर अगर मैं उसके ऊपर कुछ जानना चाहूँ कोई गाइड मुझे करने वाला मिलेगा। फॉर एग्जांपल आज कोई मिलेट मैंने ऑर्डर कर दिया बट मिलेट इज न्यू टू एवरीवन, उसको कैसे खाना है, कैसे पकाना है, कैसे क्या करना है, अब ऑनलाइन पे तो कोई बताने से रहा। मैं इंटरनेट पे जाके जब ढूंढता हूँ तो उसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो वैसे कंफ्यूज कर देती है। सो हेल्थ शॉप वुड बी द राइट प्लेस जहाँ पर आप जाएंगे, खरीदेंगे, समझेंगे, ठीक है, और कोई क्वेरीज होगी तो वो क्वेरीज भी आपकी वहाँ पे शांत होगी। सो इंडिया अपॉर्चुनिटी में, इंडिया इज अ यंग कंट्री, पॉपुलेशन इज हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आज के दिन, बिकॉज एज एन कंज्यूमर मार्केट जो है इंडिया जो है मोस्ट पोटेंशियल मार्केट है, वर्ल्ड इज लुकिंग एट द इंडिया एंड ग्रोइंग फोकस जो है हेल्थ और वेलनेस के लिए हर किसी का हो रहा है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि अगर फिट रहना है तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल पे काम करना है और जिंदा रहने के लिए फिट रहना जरूरी है। ये कोविड ने हमें बता दिया। सो एक्सपेंडिंग कस्टमर बेस, अब हर कोई इस लाइन में फॉलो कर रहा है। पहले तो जो थोड़े से हम कहें ज्यादा पढ़े लिखे लोग या थोड़ा जिनका इकोनॉमिकली जो थोड़े साउंड थे वो लोग थोड़ा अपनी हेल्थ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देते थे, बट अब धीरे धीरे लोगों ने, हर किसी ने समझ लिया है कि हेल्थ पे ध्यान देने की हर किसी को जरूरत है। और कोई क्लियर लीडर अभी मार्केट में इस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं है। तो अलग अलग ब्रांड नेम के साथ अलग अलग प्रोडक्ट्स मैंने जैसे शुरू में कहा मिल जाएंगे, कहीं ऑफलाइन तो कहीं ऑनलाइन, कहीं किसी ग्रोसरी स्टोर के कोने में किसी शेल्फ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट कोई पर्टिकुलरली टेक के साथ जहां पर हम हेल्थ को ही एड्रेस कर रहे हो ऐसा कोई ब्रांड अभी अवेलेबल इंडिया में नहीं। और इसका इजी एक्सपेंशन है, अगर आपको एक हेल्थ फ्रेंचाइजी लेते हैं आपको तो आप दूसरी तीसरी, देन इट इज एन इजी टू एक्सपेंड। इस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें 3 फॉर्मेट हैं हमारे, एक बेसिक फॉर्मेट है, एक एडवांस है, एक हाइब्रिड है। तीनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, बेसिक इज अ स्मॉल फॉर्मेट जिसको हम सिर्फ प्रोडक्ट शॉप हम कह सकते हैं, बट उसमें भी जो अटेंडेंट स्टाफ होगा इट विल बी फुल्ली ट्रेन्ड, वो हम कंपनी ट्रेंड उसको करेगी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देंगे हम उसको, कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग देंगे। एडवांस में कंसल्टेशन साथ में होगा, somebody would be there maybe full time or part time, either it's a dietitian or maybe then some Ayurvedic background doctor to for the consultation as well। एंड तीसरे हाइब्रिड को हमने एक बड़ा यूनिक मॉडल होगा ये, अगर आप इसमें जाएंगे जिसमें आप एक एक्सपीरियंस एरिया फील करेंगे जहां पर चीजें आप खुद भी बना सकेंगे अपने लिए। फॉर एग्जांपल आप गए और आपने अपनी हेल्थ प्रॉब्लम वहां पर जो एक्सपर्ट्स उनका शेयर की, और फिर आपको एडवाइस किया गया कि आपको आटा खाना है लेकिन आटे में आपको गेहूं खाना ही नहीं है फॉर एग्जांपल, या खाना तो इस रेशो में खाना, ये रेशो है। आप राइट फ्रॉम देयर वहीं से चीजें प्रोक्योर करके वहीं पे आप ग्राइंड करके अपना आटा वहीं बना सकते हैं। जस्ट आटा में इसलिए बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ कि मोस्ट कॉमन है, तो बहुत सारी चीजें हैं बट हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल से ही चीजों को एड्रेस कर रहे हैं। और इसी तरह से कुछ रेडी टू ईट हेल्थ प्रोडक्ट्स भी होंगे जिसको हम हेल्थ कैफे, विद इन दिस शॉप एक हेल्थ कैफे होगा, स्मॉल हेल्थ कैफे। कई बार बहुत सी चीजों का हमें पता है कि ये चीज खानी चाहिए, लेकिन हाउ टू डू इट, हाउ टू मेक इट, उस पर हैंड्स ऑन नहीं होता हमारा। हैंड्स ऑन मतलब उस प्रैक्टिस नहीं होती। सो हेल्थ कैफे में कुछ ऐसी चीजें जो टीम में खानी चाहिए वो चीजें वहां पर अवेलेबल होंगी रेडी टू ईट, बट वो सिर्फ वहां अवेलेबल इसलिए नहीं होंगी कि आप रोज जाइए वहां से खरीद के खाइए, वो अवेलेबल आपको चीजें कि हाउ टू मेक इट, ठीक है, छोटे उससे रिलेटेड एक्सेसरीज। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, स्प्राउट्स खाना चाहिए, एवरीबडी नोज इट, बस बहुत से लोग तो स्प्राउट्स इसलिए नहीं खा पाते कि उनको पता नहीं स्प्राउट्स बनाए कैसे। बहुत से लोग कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं, उसमें कभी स्मेल आ जाती है, कभी पूरी तरह से बनते नहीं है। सोर्स रोज कैसे बनाए, कैसे इसको स्टोर करें, बहुत छोटा सा एग्जांपल है स्प्राउट्स का, बट उसके रिलेटेड एक्सेसरीज मार्केट में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं जो बहुत इजी है उसको बनाना, उसको स्टोर करना इजी है। फिर दूसरा, किस किस चीज के स्प्राउट्स बन सकते हैं, 2-4 चीजों के हो सकता है सबको पता हो, बट उससे अलावा किसके बन सकते हैं। सो ऐसी छोटी छोटी चीजें, कुछ ऐसे मिक्स हैं, कुछ हर्बल मिक्स हैं, कुछ ऐसे और दूसरी चीजें, वो उस हेल्थ कैफे में लाइव प्रैक्टिकली तौर पर सर्व भी किए जाएंगे, सेल भी किए जाएंगे, और उससे रिलेटेड जो है वो आइटम्स भी सेल किए जाएंगे। तो एक हाइब्रिड मॉडल में कंसल्टेशन है, एक एक्सपीरियंस एरिया है, एक हेल्थ कैफे है,
एक कंप्लीट जोन है वो, जो जिसको आप कंप्लीट एक हेल्थ जोन कह सकते हो, बट इट वॉन्ट लुक लाइक ए क्लिनिक। वो एक क्लिनिक नहीं है, वो एक टिपिकल शॉप भी नहीं है, वो एक ऐसा हाइब्रिड मॉडल है जिसमें जाकर के आप अपने हेल्थ से रिलेटेड जो ऑनलाइन जितना भी ज्ञान मिला है उसको वैलिडेट करके चीजें वहां से ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट रेंज तीनों की डिफरेंट है, एरिया रिक्वायरमेंट भी तीनों की डिफरेंट है, जो स्क्रीन पे आपके सामने ही है। बेसिक में अराउंड 200 स्क्वायर फीट, एडवांस में अराउंड 300 स्क्वायर फीट, हाइब्रिड में अराउंड 600 स्क्वायर फीट। ये मिनिमम एरियाज है, इससे ज्यादा होती है तो चीज थोड़ी सी और एक्सपेंड होकर अच्छी बन जाती है, बट दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। प्रोडक्ट्स तीनों में ही होंगे। टेस्टिंग, हाँ इसमें एक टेस्टिंग फैसिलिटी यूनिट भी हम छोटी सी लगा रहे हैं, खासकर वो चीजें जो हम रोज मर्रा की लाइफ में यूज करते हैं, जैसे मिल्क है, पानी है सॉरी और सबसे ज्यादा डाउट भी इन चीजों पे रहते हैं। रोज खबर आती है कितना नकली दूध बनाने का कारखाना पकड़ा गया, ये वो पकड़ा गया। और बहुत सी बार ये भी न्यूज आती है कि जो हम नॉर्मल दूध भी पी रहे होते हैं किसी इवन अच्छी ब्रांडेड कंपनीज का भी, उनके अंदर भी कई बार न्यूज आती है कि वहां पर भी जो प्रोसेसिंग है, टेस्टिंग है, वो उतना स्ट्रिंजेंट नहीं है। बहुत बार न्यूज आती है डिफरेंट डिफरेंट मिल्क प्लांट्स की। सो ऐसे कुछ एनालाइजर हम अपने इस हाइब्रिड और एडवांस शॉप में लगाएंगे, जहां पर आपका कंज्यूमर वो आपका एक तरह से मार्केटिंग टूल भी होगा, और वो एक तरह से जो हम बोल रहे हैं उसको लाइव दिखाने का भी एक जरिया होगा कि आप अपना घर से अपना जो भी आप खाते पीते हैं वो सैंपल ले आइए और हमारे यहाँ पे आके टेस्ट करके ले जाइए। ऑटोमेटिक एनालाइजर होंगे वो, उसमें कोई बहुत ज्यादा मैनुअल प्रोसेसिंग नहीं होगी, एनीबडी कैन डू दैट। तो वो भी एक फैसिलिटी हम अपने हेल्थ शॉप में जो है देने जा रहे हैं, दैट वाज द फर्स्ट टाइम। So these store to come under franchisee association, franchisee owned, franchisee operated। ये जो मॉडल है वो फोफो मॉडल है। फोफो मींस फ्रेंचाइजी ओनर, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। ये जो शॉप है वो फ्रेंचाइजीज की होगी, फ्रेंचाइजी उसको ऑपरेट करेगा, लेकिन कंपनी की जो सपोर्ट है पीछे से वो ट्रेनिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड एंड प्रोडक्ट अपग्रेडेशन से रिलेटेड, प्रोडक्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड, वो कंप्लीट सपोर्ट पीछे से जो है वो कंपनी की होगी। और स्टेप टू स्टेप, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि हमारे लिए सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक इंडिया के लिए मान के चलिए कि आप और हम अगर ये साथ करेंगे तो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात है, एक अवेयरनेस को प्रैक्टिकल फॉर्म देने की बात है। थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होता है। जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, फेसबुक के, वो थ्योरी है, लेकिन वो प्रैक्टिकल तभी कन्वर्ट हो पाएगा जब कुछ इस तरह का इंफ्रा होगा। तो ये उस ज्ञान का, उस थ्योरी वर्जन का एक प्रैक्टिकल वर्जन है, हम सब जब अगर मिलकर इसको करते हैं। सो हमारे लिए जो इस फ्रेंचाइजी का वैल्यू है या जो इसकी फिजिबिलिटी की जितनी वैल्यू है, वो फ्रेंचाइजी जो इन्वेस्ट कर रहा है उससे ज्यादा हम इसको ऑनर्स लेके चलेंगे, सो दैट ये हम हर फ्रेंचाइजी हमारी सिर्फ अच्छा करे, बल्कि वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 फ्रेंचाइजी अपनी आने वाले टाइम में बनाए। So health shop ideally place to go big in franchisee. So इसमें क्रेडिबिलिटी में जैसे ये सारी चीजें शेयर विद यू की जो हमारा 18 साल का एक्सपीरियंस है वो एक सबसे बड़ा टेक है, बिकॉज 18 साल में जो हमने सीखा है, देखा है, वो कोई 18 महीने में या 18 दिन में नहीं सीखा जा सकता। नहीं उसको हम अपने अंदर ढाल सकते हैं या किसी आइडिया में उसको हम नहीं दे सकते हैं। फेवरेबल मार्केट ट्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि अभी की जो कंडीशंस हैं वो हेल्थ के लिए, हेल्थ प्रैक्टिसेस के लिए बेस्ट कंडीशंस हैं, और कोई भी हेल्थ से रिलेटेड अगर इंफ्रा या प्रोडक्ट्स आता है तो डेफिनेटली वो हाथों हाथ लिया जाता है। सक्सेसफुल ऑपरेशंस, हम 18 साल से यही काम कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं। अपने लेवल पे, अपने क्लिनिक लेवल पे बहुत से प्रोडक्ट्स को इन हाउस हमने डेवलप किया, कर रहे हैं। एंड देन डेफिनेटली जो रुझान है कंज्यूमर का, वो एक बहुत अच्छा होता है तब उसको अगर कोई चीज जहां से हम भेजें वहां सब कुछ उसको मिल जाए। मॉडर्न ट्रेड क्यों सक्सेसफुल हुआ था? मॉडर्न ट्रेड इसीलिए सक्सेसफुल हुआ था कि हम जाते हैं, बास्केट लेके घुसते हैं और सारी चीजें एक जगह पे मिल जाती हैं। नहीं तो
दालचीनी लेने के लिए अलग बनिए की दुकान पे जाओ, कोई और चीज कपड़े लेने के लिए अलग, प्लास्टिक के बर्तन खरीदने हैं तो अलग, कोई घर किचन का आइटम खरीदना तो अलग अलग दुकानों पे जाना पड़ता था और तब जा करके घर की शॉपिंग होती थी। तो इसी तरह से अगर आज हेल्थ की शॉपिंग करनी है तो 4 प्रोडक्ट ऑनलाइन मिलेंगे, कोई किसी को फोन करके मंगवाना पड़ेगा, कोई किस कहना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें हैं। हम इसमें बहुत छोटे छोटे आइटम्स हैं, गुड़ शक्कर है फॉर एग्जांपल, खांड है, वो भी हमारा सुपर फूड का एक हिस्सा है। बिकॉज शुगर, एवरीबॉडी नोज कि शुगर, चीनी जो है वो एक जहर की तरह काम करती है शरीर में, लेकिन डेफिनेटली हम ये भी नहीं कह सकते कि जस्ट मिठास गायब कर दें लाइफ से, बट उसके ऑल्टरनेट्स हैं, उससे कम नुकसान वाले हैं या उससे बहुत कम नुकसान वाले हैं, वो ऑल्टरनेट्स भी हम अपने हेल्थ शॉप में लेके आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो वो सारी चीजें जो है पर्टिकुलरली हमारे इसका अफोर्डेबिलिटी, मैंने बताया कि हमारे प्रोडक्ट्स कोई बहुत मार्केट से डबल ट्रिपल दाम के नहीं हैं, मार्केट वाले दामों पे या उससे थोड़े बहुत प्लस माइनस पे ही हम उनकी अश्योरिटी, क्वालिटी टेस्ट वो सब इंश्योर कर रहे हैं। एंड हाई अडेप्टेबिलिटी है, एक्साइटिंग ROI है, ROI इज वेरी एक्साइटिंग जो है पर्टिकुलरली इसमें अगर हम मार्जिन ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 50 to 60%, अराउंड 60% एवरेज मार्जिन है। और अगर हम बैक कैलकुलेशन करें प्रोडक्ट्स सेलिंग कॉस्ट के मार्जिन की बात करें तो 30-35% का इसमें हम एक ऑन एन एवरेज मार्जिन, किसी में कम है तो किसी में थोड़ा सा ज्यादा है, बट ऑन एन एवरेज मार्जिन इतना इसमें आ रहा है। सो 15 से 18 या हम ज्यादा कहें 2 साल तक का इसका ROI मतलब जो आप पैसा लगा रहे हैं उसका वो रिटर्न आपको ऑलमोस्ट मिल जाता है प्रॉफिट के रूप में। नेक्स्ट प्लीज। वैल्यू प्रपोजिशंस, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई फ्रेंचाइजी ऑफर करते हैं तो उसमें वैल्यू प्रपोजिशंस दिखना चाहिए। पार्टनर के लिए कई बार कंपनीज ऑफर तो कर देती हैं बट अपने आप को 100% रिस्क फ्री रख लेती हैं और सब कुछ जो है फ्रेंचाइजी पे डाल देते हैं। हमारे इस मॉडल में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये मॉडल सिर्फ एक टिपिकल फ्रेंचाइजी वाला मॉडल नहीं है। इसमें हम कंधे से कंधा लगा के और हर चीज में कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट कंपनी की रहेगी, चाहे वो डे टू डे ट्रेनिंग की बात हो या कस्टमर केयर की बात हो या कोई ऐसी कोई डिमांड्स पर्टिकुलरली किसी एक रीजनल एरिया से आ रही है जो कि हो सकता है उस वक्त हमारे पास ना हो, उसको कैटर करने की बात हो, और बहुत सी चीजें हैं वहाँ, मार्केटिंग को डिजाइन करने की बात हो, एंड शॉप को ओवरऑल, शॉप मीन्स बहुत इनिशियल लेवल से लेकर के जब हम साइन करते हैं डील, इनिशियल शॉप फाइनल करना है, लोकेशन स्टडी करनी है, लोकेशन स्ट्रेटजी बनानी है, शॉप डिजाइन करना, तो एवरीथिंग वी विल डू इट फॉर आवर पार्टनर। ग्रोइंग कस्टमर बेस है और जो कंजम्पशन है हेल्थ फूड्स के, हेल्थ प्रोडक्ट्स की, वो पर कस्टमर काफी बढ़ गई है पिछले, अगर हम 2 साल की बात करें। आप सब भी अगर आप देखेंगे तो 2 साल में आपने इतने बहुत से हेल्थ प्रोडक्ट्स खाए होंगे जो शायद अपनी पूरी लाइफ में आपने नहीं खाए होंगे, सिर्फ इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए, ताकि बचे रहें। हेल्थ शॉप प्रेजेंट इन हेल्थ कॉन्सेप्ट बैक्ड बाय थॉरली रिसर्च प्रोडक्ट्स मिक्स। जैसे हमने बताया कि हमारा जो 18 साल के एक्सपीरियंस में हमें ये पता है कि एक्चुअल लोगों को चाहिए क्या, और हम अपने शॉप में वही चीज रख रहे हैं जो एक्चुअली चाहिए। रखने को तो आप एक किराने की दुकान में किराने इतने सारे आइटम रखे रहते हैं, उसको दुकानदार को खुद नहीं पता मेरी दुकान में क्या क्या रखा है, बट वो सब रखते हैं इसलिए उसने सब रखा है। सो हमारा मॉडल उस तरह का नहीं है, हम बहुत स्पेसिफिकली टारगेटेड प्रोडक्ट्स जो है वही इंट्रोड्यूस अपनी हेल्थ शॉप में कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज हैं, प्रोडक्ट्स सोर्सिंग जो है वो अक्रॉस इंडिया है, एंड इन सम कैटेगरीज तो इट मे बी देन अक्रॉस वर्ल्ड, बिकॉज कुछ चीजें हैं जो हो सकता है इंडिया से बाहर से भी बहुत अच्छी चीज हो, सो वो से भी हमें कोई ऐसा परहेज नहीं होगा, बिकॉज हमारा टारगेट हेल्थ है, हेल्थ एट एनी कॉस्ट। फाइन। सो स्टेक होल्डर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंपनी का जो रोल है वो जैसे मैंने बताया पहले भी, शॉप डिजाइन करके देना पूरा शॉप को, बिकॉज हर शॉप का अलग साइज होता है, किसी की लंबाई कम है, किसी की चौड़ाई ज्यादा है, उसके हिसाब से कस्टमाइज डिजाइन होगा, कोई स्टैंडर्ड डिजाइन नहीं है हर शॉप का, एक कस्टमाइजेशन के हिसाब से। एंड प्रोवाइडिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वो सब पर्टिकुलरली कंपनी का रोल पे है। प्रोडक्ट्स
डेफिनेटली इन्वेंटरी तो कंपनी से ही जाएगी। ट्रेनिंग, कंप्लीट ट्रेनिंग, एंड इट इज नॉट अ वन टाइम ट्रेनिंग, इट इज अ रेगुलर ट्रेनिंग। जो भी फ्रेंचाइजी अगर खुद ऑपरेट करता है या किसी को अपॉइंट करता है ऑपरेट करने के लिए, तो उसकी कंप्लीट प्रोडक्ट ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, ये कॉन्टिन्यूसली पार्ट रहेगा। एंड द मार्केटिंग में डेफिनेटली मार्केटिंग मटेरियल डिजाइन करके देना, मार्केटिंग जो सेंट्रल मार्केटिंग है वो कंपनी करेगी, लोकल मार्केटिंग में फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करेगी, वो सब कंपनी का काम है। फ्रेंचाइजी का जो काम है शॉप एक्विजिशंस में, शॉप जहाँ उसने हेल्थ शॉप खोलना है वो जगह अरेंज करना, उस जगह उसकी अपनी भी हो सकती है या रेंटेड भी हो सकती है। स्टॉक प्लान करना, डेली ऑपरेशंस को देखना, डे टू डे ऑपरेशंस की शॉप टाइम से खुले, टाइम से बंद हो, एज पर जो एसओपीज हैं उसके अकॉर्डिंगली शॉप चले, सो दैट बिकॉज एसओपीज हमने भी कुछ सर्टेन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई हैं, वो फॉलो होंगी तो जो है फेलियर के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। कई बार चीजें अपने हिसाब से चलना शुरू हो जाती हैं, ना कुछ खुलने का टाइम, ना बंद होने का टाइम, ना प्रोसेस, तो वो एक ब्रांड शॉप फिर कंज्यूमर को नहीं लगती, और एक क्रेडिबिलिटी जो है कहीं ना कहीं लूज होती है, और उस जो क्रेडिबिलिटी लूज होती है तो उसका नुकसान कंपनी को भी भुगतना पड़ता है और उसका नुकसान फ्रेंचाइजी को भी भुगतना पड़ता है। लोकल मार्केटिंग डेफिनेटली अपने आसपास के एरियाज की जो छोटी मोटी मार्केटिंग है, फ्रेंचाइजी हैज टू डू इट। सो नेक्स्ट वन प्लीज। की सपोर्ट फंक्शंस हैं, प्री ओपनिंग में साइट सिलेक्शन में हेल्प करना, स्टोर डिजाइन एग्जीक्यूशन में करना, इन्वेंटरी प्लानिंग में करना, एंड देन ऑल वो सारी चीजें जो है लॉन्च मार्केटिंग प्लान वो सब करना। पोस्ट ओपनिंग में प्रोडक्ट मिक्स को इवॉल्व करते रहना, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम करना, कॉर्पोरेट मार्केटिंग प्लान्स, आपके आसपास जो भी कॉर्पोरेट मार्केटिंग प्लान्स है या हमारे कॉर्पोरेट लेवल पे जो मार्केटिंग प्लान्स है उनको रोल आउट करना। नेक्स्ट प्लीज। आइडियल पार्टनर प्रोफाइल जो है वो मल्टी यूनिट पार्टनर भी हो सकते हैं, सिंगल यूनिट पार्टनर भी हो सकते हैं, और मास्टर फ्रेंचाइजी भी हो सकते हैं। की स्किल सेट में रिटेल ऑपरेशंस में थोड़ा बहुत तजुर्बा है, बहुत अच्छी बात है। इन्वेंट्री प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का तजुर्बा है तो बहुत अच्छी बात है। कस्टमर्स एडवाइजरी एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा अगर किसी का तजुर्बा है, ऑलरेडी किसी को शॉप चला रहा है, कोई बिजनेस में है जहाँ कस्टमर इंटरेक्शन का थोड़ा बहुत उसको तजुर्बा है, दैट इज रिक्वायर्ड। एंड एक्सेस टू रियल एस्टेट, ideally should be everybody with an investment range of 10 to 25 lakhs की जो रेंज है हमारी, जो स्मॉलेस्ट फॉर्मेट है स्टार्ट विद अराउंड 10 lakhs एंड जो हाइब्रिड है goes up to 25 lakhs, and not specific to patient or old age people, but 15 to 64 years, and potential जो entire जो कस्टमर है हमारा, जो डेफिनेटली 1.37 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी, वो सब हमारे कस्टमर्स हैं, बट लार्जली जो 15 से 64 साल के बीच की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर हमारी। तो थैंक यू, दिस वाज द हेल्थ शो प्रेजेंटेशन, and now I'm open to take the questions, please. Thank you so much, Dr. Kumar. Friends, you can use the Q&A box for asking any questions that you would have on the business model. I feel overall this was a very, very elaborate, descriptive understanding of what Dr. Kumar wants to offer both to the consumer, the end consumer, the patients, and also to a franchisee. And as Dr. Kumar also mentioned, their center, which is a lifestyle center, they work on the concept of health at convenience. And that is the reason they're coming up with these centers which are closer to their consumers. And they're developing these small health service centers all across Delhi NCR, which would have both offline and online support for their patients. And also to add, they use all natural and safe products and practices like yoga, naturopathy, Ayurveda, psychotherapy, diet, nutrition to fulfill the fitness goals. So we're talking about 3 formats, friends: 200 square feet, 300, 600. And in 3 formats hai, wherein 200 sirf aapka retail ka format hai, where you keep all the retail products. 300, you also have a consultant at the outlet. And third is where you also have additional cafe, where the investment starts as small as 9 lakh of rupees. So Dr. Kumar, just to get a little bit of
of more understanding on these three formats. सबसे पहले अगर हम समझे ये हमारा जो SKUs होंगे 200 स्क्वायर फीट के फॉर्मेट में, what are the SKUs that we are looking at, क्या हमारा प्रोडक्ट होगा, क्या हमारी प्राइसिंग होगी, would you want to give little understanding on that? और दूसरा, क्योंकि हमारा we are a brand which is a health and a fitness product, इसमें बिजनेस में do we have more of subscribers? ऐसे लोग आते हैं जो रेगुलरली वो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, और one has to look for new clientele. Over to you. Okay, so as far as SKUs concerned, जैसे मैंने बताया कि अभी particularly हमारा around 200 के करीब SKUs हैं, but in time to come in next 2 years, we are planning to reach up to 500 to 600, because every SKUs which we add, there is a process. Fine, but 200 SKUs is covers the good numbers of the health products, जो basic need make के products सारे इसमें आ जाते हैं. And second was the pricing. See, अगर हम particular range की बात करें, our products price range starts from the 100 rupees. It goes up to the 17,000 rupees. The highest cost product is the yoga category, which we call the back bending bench, जो कि online में जो अगर आप उसको खरीदेंगे तो किसी भी online platform पे it won't be lesser than the 21,000 rupees. But that we are selling only in 16 or 70,000 rupees. Fine. So in between this category, but average pricing would be 300, 400 rupees, we can call it. Fine. So, and now categories भी जैसे मैंने बताया कि nutrition में हम हैं, Ayurveda में हैं, and then superfoods and all. And the last one, subscription, definitely there's a two kind of products. One of the regular need products, जिसको हम FMCG category product कह सकते हैं, but comes under the health. Fine. So अगर जैसे मैंने बताया आपने चावल खरीदना है, आटा खरीदना है, you don't need any subscription or prescription. You just go to market and buy it. Today you are buying it from a normal FMCG store, but tomorrow you'll get to know that there's a health shop in your neighborhood, and so definitely you would like to go there. So you would find a better products, better understanding. So all millets and all these kind of things. Even we sell the salt also. We sell the the khand also. We sell the shakkar also. We sell the gur also. We sell the green teas also. But of the different categories and the different the descriptions. So this is what it is, and definitely franchisee can make his own members. It is possible. Though company is also thinking to roll out some subscription model, जिसमें हम loyalty bonuses and loyalty कुछ benefits अपने consumer को दे सकें, but local level पे franchisee level पे भी these programs can be run कि वो अपने health shop के members एक community, because health community is increasing day by day, so एक health community एक community create करके उसके साथ लोगों को जोड़ा जा सकता है, and everyone who is interested in buying the health products. यहाँ पर health product अगर हम करेंगे तो ये अलग कैटेगरी नहीं है, ये पर्टिकुलरली एक टैग है. फॉर एग्जांपल आप रोटी खा रहे हैं एक आटे की, वो भी आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, बट आटा इज नॉट अ हेल्थ प्रोडक्ट्स, बट दैट इम्पैक्ट्स योर हेल्थ, सो उस पे एक हेल्थ टैग लगना जरूरी. सो देयर वी आर प्रोवाइडिंग ऑल सच ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेट इन अ बेटर वे. फाइन. जब मिलेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑल काइंड ऑफ मिलेट्स, ऑल काइंड ऑफ हर्ब्स हैं. Today, if we want to have a trifla, just an example, ठीक है, त्रिफला के दो ही ऑप्शन है, या तो आप जाएं और किसी कंपनी का त्रिफला खरीद के लेके आ जाएं, या आपको लगता है कि नहीं, आई वांट टू मेक इट माय ओन बाय माय ओन, सो आपको उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, फ्रॉम वेयर विल यू बाय. अगर आप एज ए कंज्यूमर सोचेंगे तो बहुत से लोगों को तो अभी बैठे बैठे ये आइडिया नहीं आएगा कि ये चीज मिलेंगी कहाँ पे. यू वांट टू गेट टू नो. सो दिस इज द सिचुएशन टुडे एज फार एज द हेल्थ प्रोडक्ट कंसर्न. सो उसी कैटेगरी में पर्टिकुलरली हर कैटेगरी का जो है वो कंज्यूमर आपका डिफरेंट है. न्यूट्रिशन में डेफिनेटली जो अगर हम पैक्ड न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट्री डाइट की बात करते हैं, जब हम मल्टीविटामिन्स की बात करते हैं, जब हम बोन एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जब हम क्लिंजर की हार्ट की बात करते हैं, जब हम डिटॉक्सिक प्रोडक्ट्स हमारा उसकी बात करते हैं, जब हम हमारा प्रोटीन एसआर है जो कि डायबिटिक और वेट लॉस के लिए अच्छा है, जब हम उसकी बात करते हैं, सो वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो पर्टिकुलरली आपकी शॉप पे आता है. एंड देन डेफिनेटली सी आज मल्टीविटामिन्स भी बहुत सारे लोग खाते हैं, एक काफी जो है उसका भी एक बड़ा मार्केट इंडिया में डेवलप हुआ है, जो कि बहुत आगे जाएगा. अभी तो वो 2% मार्केट है ओनली, एज पर अगर हम देखें तो अभी
उसको ग्रो होने, अब उसके बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। बिकॉज अभी मैं ये समझ में आ गई है, या एक क्लास को तो खासकर आ गई है कि जितना भी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो हमारी रेगुलर डाइट से पूरी नहीं होने वाली, तो कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्री मीन्स जो है वो हमें साथ में चाहिए होगा, सो दैट हम डेली न्यूट्रिशन को की नीड्स को पूरा कर सकें। सो दोनों, हर तरह का कंज्यूमर, जो आपका एक वॉक इन कंज्यूमर है वो भी आपका कंज्यूमर है, एक जो प्रेस्क्राइब्ड कंज्यूमर है वो भी आपका कंज्यूमर है, एक जो स्पेशलाइज्ड कंज्यूमर है जो थोड़ा सा अवेयर है, उसको हेल्थ प्रोडक्ट, हेल्थ शॉप, हमने नाम भी हेल्थ शॉप में दिया कि हेल्थ शॉप, ठीक है। डॉक्टर कुमार लाइफस्टाइल सेंटर को पर्टिकुलरली आज हो सकता है कि कहीं पर लोग ना भी जाने या कम जाने या ज्यादा जाने, बट हेल्थ शॉप, देयर इज अ टैग कॉल्ड हेल्थ शॉप, दैट मींस समथिंग इज रिलेटेड टू हेल्थ। हेल्थ शॉप इन द शॉप, दिस इज नॉट अ हेल्थ क्लिनिक, इट इज एन अ हेल्थ शॉप। वेरी हेल्पफुल डॉक्टर कुमार। ये जो भी हमारा स्टॉक रहता है, बिकॉज आपके बहुत सारे एसक्यूज हैं, हाउ इज द सिलेक्शन ऑफ दिस इन्वेंट्री डन? वन, दूसरा, इसमें कोई स्लो मूविंग रहता है या कहीं नहीं मूव करता है, हम रिप्लेस करते हैं, वी टेक इट बैक? दैट वाज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चंस आई हैड। एंड इन कंटिन्यूएशन आई विल आल्सो आस्क, बिकॉज यू फुलफिल बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, कोई भी डिमांड अगर आपकी ऑनलाइन आती है ना, आपके लोकल फ्रेंचाइज पार्टनर्स उन लोकेशंस पे हैं, तो फुलफिलमेंट हम किसके थ्रू करते हैं? वी डू इट थ्रू आवर फ्रेंचाइजीज और वी डू इट डायरेक्टली थ्रू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? सो नंबर वन, स्टॉक पे के लिए हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर का जीरो रिस्क है। जो भी स्टॉक हम देते हैं उसमें चाहे वो स्लो मूविंग स्टॉक है, विल टेक इट बैक और वी रिप्लेस इट विद द फास्ट मूविंग स्टॉक। और अगर पर्टिकुलरली कल को कोई चीज ऐसी सिचुएशन आती है कि वेयर द थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज प्लान्ड, वी टेक द एंटायर स्टॉक बैक ऑन द कॉस्ट बेसिस। सो स्टॉक पे देयर इज अ जीरो रिस्क। जैसे मैंने बताया कि हमारे लिए ये बिजनेस वैसा बिजनेस नहीं है कि हमने दिया दैट्स इट, वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनीथिंग, वी आर रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। वो इसीलिए कह सकते हैं वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है एवरीबडी नीड इट। इसके लिए कोई कैटेगरी नहीं है कि ये कैटेगरी है, वो कैटेगरी है, वो वहां पे ना आया तो क्या होगा। नो, दीज आर द जेनरिक प्रोडक्ट्स, एवरीबडी नीड इट। बट हमने उसके पीछे एक मैकेनिज्म जोड़ दिया है जहां पर हर प्रोडक्ट टेस्टेड है, हर प्रोडक्ट वेरीफाइड है और हर प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड है, एक रूफ के नीचे लेके आ गए। जो अभी सिर्फ व्हाट्सएप और मे बी फेसबुक की पोस्ट में था, हमने उसको प्रैक्टिकल ला के रख दिया, ये रहे, फाइन। And as far as the online this thing comes, definitely local business will go to the franchisee on. अगर फॉर एग्जांपल अगर कल को कोई मुझे पुणे का ऑर्डर है और यहाँ लैंड किया है कंपनी के सेंट्रल डेटाबेस में, तो वो इट विल गो टू द पुणे फ्रेंचाइजी, उस एरिया रिलेटेड फ्रेंचाइजी, फुलफिलमेंट वहीं से होगी, वो उसी की सेल काउंट होगी। Sure, that's very helpful, डॉक्टर कुमार। एंड दूसरा जो हमारा मॉडल, हमारा कंसल्टेशन मॉडल है, तो इसमें जो भी एक्सपर्टीज होगी या जो भी कंसल्टेंट्स होंगे, दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी। जो ट्रेनिंग होगी वो सारी कंपनी अपॉइंट करके देता है उनको, और ट्रेनिंग सारी कंपनी हैंडल करती है। Yes, there's a two kind of things. इसमें पर्टिकुलरली हमें थोड़ा सा ये देखना है एक चीज इसमें कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक सिटी में 3, 4, 5 फ्रेंचाइजीज हैं, इनिशियली तो कोई एक कंसल्टेंट हम अपॉइंट करेंगे, कंपनी अपॉइंट करेगी, कंपनी ट्रेन करेगी, और वो शेयर्ड बेसिस पे होगा। क्योंकि हो सकता है कि एक फ्रेंचाइजी पे शुरुआत में इतना पर्टिकुलरली कंसल्टेशन के लिए इतना क्वेरीज ना हो, बट वो मे बी एक टाइम डेजिग्नेट हो जाएगा उसका वहां पे, एंड द अदर टाइम वुड बी अवेलेबल एट अदर फ्रेंचाइजी। बट एज सुन एज किसी एक फ्रेंचाइजी का बिजनेस ग्रो करता है, वहां पर लगता है कि होल डे द पर्सन इज रिक्वायर्ड, देन वो पर्टिकुलरली वहां पर फिक्स कर दिया जाएगा उसको। सो उसकी मॉनिटरिंग, उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी ट्रेनिंग, इट विल बी डन बाय द कंपनी, बट उसका एक जो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट है वो फ्रेंचाइजी के ऊपर डाल दिया जाएगा, नॉट द कंप्लीट कॉस्ट। इसलिए उसको बिकॉज उस फिजिबिलिटी कहीं ना कहीं चैलेंज ना हो, इसलिए हम हर कॉस्ट को हमने बड़ा समझ के कैलकुलेट करके रखा है कि कोई भी बर्डन जो है फ्रेंचाइजी के ऊपर अननेसेसरी ना है। श्योर डॉक्टर कुमार, दैट्स हेल्पफुल। एंड अगर हम प्रायोरिटी लोकेशंस देखें, भी हमारा फिलहाल जो फोकस, आपने बहुत सी सिटीज दिखाई थी, अगर मैं दिल्ली में ही समझूं, कहाँ का डिमांड आपकी हाईएस्ट अभी आ रही है, जहाँ पे आपको लगता है अगर हम आउटलेट्स अपने खोलें, कोई ऐसे स्पॉट्स होंगे या कोई ऐसी लोकेलिटीज होंगी दिल्ली या आसपास हमारे फरीदाबाद हो, गुड़गांव में, जहाँ पे डिमांड हम फुलफिल अगर कर सकते हैं, विच करंटली इज कमिंग ऑनलाइन टू यू, तो कौन से ऐसे प्रायोरिटी सिटीज लोकेशंस आप एडवाइस करेंगे इन्वेस्टर्स को? अगर हम दिल्ली की बात करें तो डेफिनेटली दिल्ली में साउथ दिल्ली हमारा क्लिनिक है जीके में, जीके 1 में। सो
वहाँ पर बिकॉज हमारी अभी शॉप नहीं है वहाँ पे, क्लिनिक के अंदर जो पर्टिकुलरली हमारा कुछ प्रोडक्ट मिक्स हम वहाँ रखते हैं। सो वहाँ पर लोग, पीपल आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज वो लोग काफी अवेयर भी हैं एंड डेफिनेटली उनकी अफोर्डेबिलिटी एंड ऑल वो बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली। वो लोग कन्वीनियंस को बहुत महत्व देते हैं। तो कन्वीनियंस यही है कि एक जगह पे सारी चीजें मिल जाए, वहीं पर उनको कंसल्टेशन भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए। तो ऐसे एरिया जो थोड़ा सा मैच्योर्ड लोकेलिटीज हैं, मैच्योर्ड लोकेलिटीज मीन्स पुराने एरियाज हैं, दिल्ली, साउथ दिल्ली में जितने भी साउथ एक्स है या जीके के पार्ट्स हैं, दोनों तीनों ये मैच्योर्ड एरियाज हैं, पुराने एरियाज हैं। ईस्ट दिल्ली में भी कुछ अच्छे मैच्योर्ड एरियाज हैं। तो एनी लोकेलिटी विद मैच्योर्ड पॉपुलेशन, नई एस्टेब्लिशमेंट जहां पर है वहां शायद अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जो भी नए नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं वहां थोड़ा सा भी टाइम लगेगा बिकॉज वहां लोग अभी उतना एस्टेब्लिश नहीं हुए। कोई पार्शली शिफ्ट हुआ है, कोई अभी सिर्फ वीकडेज के लिए शिफ्ट हुआ, वीकेंड में अपने घर चला। तो जो पुराने एरिया, मैच्योर्ड एरियाज हैं, वहां हर जगह इसका पोटेंशियल है, हर जगह इसका ये फिजिबल। So that's very helpful for us to understand, Dr. Kumar. And friends, I will also request all of you, we are holding a discovery day in the coming week. All our investors who have come on the webinar, and many of you are also listening live. And if you wish to have more detailed understanding on the financial business model and also the business model and the offering at length, I will request all of you to block your time with us, and our teams at Franchise India will reach out to you. The date that we have for Discovery Day is 29th of December. So whosoever wants to visit, I'm sure a lot of people from Delhi who have come in might also want to experience and meet to be able to have more clarity on the entire format. I'll request all of you friends to reach out to us on a hotline number so that our teams can start blocking time for you for 29th. In the meantime, our teams also will start reaching out to you to share all the information that you need to make your next call or meeting productive. And before we close, Dr. Kumar, I will request if there's a closing remark from you for all the audience who's listening live and on the webinar. Yeah, sure, Archana, thank you. At the end, I would like to say that health, दो तरह से हम उसको देखते हैं कि हम खुद हेल्दी रहें और एक हम कुछ ऐसा करें कि दूसरों की हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर सकें। So this model or this business, I would say, is helpful to achieve both the goals, खुद को हेल्दी रखने में और दूसरों को हेल्दी रखने में हेल्प करने के लिए। हेल्थ सिर्फ कोई थ्योरेटिकल मुद्दा नहीं है कि हम थ्योरेटिकली बहुत नॉलेज एक्वायर कर लें, बहुत चीजें समझ लें, जान लें। ये एक प्रैक्टिकल मुद्दा है हर प्रोस्पेक्टिव से, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड है, चाहे कुछ अपनी फिजिकल या मेंटल प्रैक्टिस से रिलेटेड है। सो इसको प्रैक्टिकल कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेटली वी नीड अ प्रैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, and for that we are trying to do that. So let's partner with each other and let's grow the health infra in our country. Thank you so much, Dr. Kumar. And friends, I'd like to thank you all for being with us for this webinar. And Ashna, over to you for your closing remarks now. Thank you so much, Dr. Kumar. Thank you so much, Sonia ma'am. Thanks all the dear participants for joining in today. Please connect with us at our business hotline number, which is 9717683838. We request you to also write to us at feedback@franchiseindia.in. Connect with us at the different social handles to share your suggestion and feedback. And in case you wish to understand more about different business opportunities, different kind of the services we provide to each one of you, please connect Gaurav sir and Sonia ma'am at their LinkedIn platform. I have just shared this information on the screen. And tomorrow we are inviting you for our IA webinar, investor acquisition webinar. This particular webinar talks about the different kind of the services as an investor you can get from our side and what benefit you'll get out of it. That can be discussed in this webinar. Webinar will start at 12 p.m. So don't miss this chance. Do registration with us for joining this webinar tomorrow. Thank you so much once again for joining in today. Have a safe day ahead. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank Thanks. you, friends.